Hi friends, today we are going to learn chapter 4 of your essays Literary Heritage of India. Means it is all about literature in India. You know, when people started writing in India, when stories were written, these all details are given in this chapter. So, what is there in this chapter? We'll come to know. Here we will discuss about different parts like which book was written by whom, and in the later parts there is description of three important universities. So we will first discuss literary part, means books and authors in the first part, and these universities will discuss in the second part of this chapter. So let us start the first part of the chapter, literary heritage. Actually, this heritage is divided into two parts. One is ancient Indian literature, and then second one is medieval literature. So how did people started talking? As I am talking to you with a I am talking to you in English, I can talk in Gujarati or Hindi also. So when all this started, so man took help of expressions, symbols, drawings, some sounds to communicate his thoughts, ideas, feelings and emotions to other. Today, if I want to say something, I can tell you in gestures also, right? But now we have language. This led to invention of dialect मतलब बोली, and scripts मतलब लिखने की भाषा. So it developed the language, and language was being used for expression of thoughts, मतलब हमारी बात किसी को बताने के लिए. And it created the literature also. As we can see, different poet and different authors are there. So Indian literature is famous for its diversity and uniqueness. Indian scholars, they have divided ancient literature into Vedic classic literature. Besides this, some folk literature was also popular. So आपको पता है ये when this person, our कालिदास, उसकी एक बुक जो पोइट गोथी को इतनी अच्छी लगी थी कि वो अपने सर पर उसको रख के डांस कर रहे थे. तो ये जादू था इंडियन लिटरेचर का. अब लैंग्वेज और लिटरेचर की बात करें तो हिस्ट्री की बात करें, सो देयर वी कैन सी मैनी लैंग्वेजेस सिंस सेंचुरीज. दिस लैंग्वेजेस इन्फ्लुएंस्ड वन अनदर. एक लैंग्वेज में दूसरी लैंग्वेज की असर आती है. जैसे गुजराती में कुछ हिंदी वर्ड्स हैं, राजस्थानी में कुछ गुजराती हिंदी दोनों वर्ड्स हैं. तो देयर आर डिफरेंट लैंग्वेजेस आर अफेक्टिंग वन अनदर. सम न्यू लैंग्वेजेस इन लिटरेचर हैव डेवलप्ड एंड फ्लोरिश्ड. The best example is Sanskrit language. You know the importance of Sanskrit language, students. We are not using today. But in the past, in religious ceremonies and worshipping rituals, this language was great in use. Sanskrit language is very old language and we were using it. So it provides opportunity for the humans for better expression and understanding. और इंडिया की सबसे पुरानी जो स्क्रिप्ट है वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन की. अनफॉर्चुनेटली उसको हम आज तक समझ नहीं पाए हैं. मीन्स इट हैज़ नॉट बीन डेसिफर्ड टू दिस डे. सो वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द लैंग्वेजेस. अब यहाँ से बहुत सारे ऑथर्स की बात आएंगी, उनकी लिखी हुई बुक की बात आएगी. सबसे पहले बात करते हैं महर्षि पाणिनि ने. ही वॉज अ ग्रेट संस्कृत ग्रामेरियन और उनकी बुक बहुत ही फेमस है और उस बुक का नाम है अष्टाध्यायी. सो महर्षि पाणिनि हैड रिटन अष्टाध्यायी. मैं यहाँ जितने भी ऑथर और उनके बुक्स मार्क करूँ, दैट यू शुड रिमेंबर फॉर 1 मार्क. सो इट वॉज a संस्कृत ग्रामर ऑफ 4th century, and Sanskrit is the language of Aryans, language of sages or language of scholars. So internationally it has been accepted that Sanskrit is the best language for the computer use. ऐसा माना जाता है. Sanskrit was the chief language for knowledge, science, religion and philosophy. Now, we'll first discuss about ancient Indian literature. वेदा, 4 वेदा थे, आपको पता है. देवर ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा. अब इंडियन लिटरेचर की सबसे पुरानी बुक है ऋग्वेद, राइट. इसमें 108 वर्सेस मतलब इसमें श्लोकास है, जिसको मंत्र या श्लोका बोलते हैं. 1028 है और इट इज़ डिवाइडेड इनटू 10 डिविजन्स
और ज़्यादातर ये भगवान की प्रार्थनाएं हैं, प्रेयर्स ऑफ गॉड, एंड दे वर यूज्ड एट द टाइम ऑफ डिफरेंट यज्ञास. अमॉन्ग द वर्सेस दोज वर्शिपिंग उषा, उषा जिसको सुबह की देवी माना जाता है, गॉडेस ऑफ डॉन, आर फैसिनेटिंग. So this work describes political, social and religious matters of Aryans who were residing in the region of सप्त सिंधु. आर्यंस जो आपको पता है कि इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में सप्त सिंधु एरिया में सेट हुए थे, वहाँ उन्होंने इसकी रचना की थी. Now Samved we will talk about. 3 other Vedas were composed after Rig Veda, or this is very important as it was composed to focus on the process of recitation of verses. मंत्रोच्चार किस तरह से किया जाए, इसलिए इसको गंगोत्री ऑफ म्यूजिक भी कहा जाता है. यू कैन अंडरलाइन दिस फॉर 1 मार्क. सामवेदा इज कॉल्ड गंगोत्री ऑफ म्यूजिक. नाउ यजुर्वेदा, इट इज़ द वेद ऑफ यज्ञास. यज्ञ के समय में जब भी पूजा होती है तो इसकी जरूरत पड़ती है. इट इज़ कंपोज्ड बोथ इन फॉर्म्स प्रोज एंड वर्स. सो इट इज़ डिस्क्राइबिंग हाइम्स. हाइम्स मतलब गीत या तो भजन. उस समय जो हम बोलते हैं जब हम यज्ञ करते हैं या तो कोई भी पूजा विधि करते हैं, तब जो हम मंत्रोच्चार करते हैं, यजुर्वेद में लिखे हुए हैं. अथर्व वेदा, ये रिचुअल्स और संस्कार, मतलब हिंदू धर्म में कितने रिचुअल्स और संस्कार हैं उसके बारे में बात करता है. उपनिषद, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है. ये बुक हमें बताती है कि इस अर्थ की या तो इस यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई थी, कब हुई थी. मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ एंड डेथ, मतलब इंसान जन्म कैसे लेता है और मौत के बाद वो कहाँ जाता है. मटीरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आत्मा से परमात्मा का मिलन करवाती है ये बुक. बृहदारण्यक या छंदोग्य, ये अर्लीस्ट उपनिषद हैं जो डायलॉग फॉर्म में है. मतलब एक स्टूडेंट अपने टीचर को पूछता है कि इंसान जिंदा कैसे होता है और मृत्यु पाने के बाद वो कहाँ चला जाता है, तो उसके सारे आंसर्स उसमें दिए हुए हैं. और इसमें 108 there are 108 डायलॉग्स इन मुक्तिको उपनिषद. नाउ ब्राह्मणिकल लिटरेचर, बहुत सारे ब्राह्मणिकल एपिक्स. एपिक्स मतलब महाकाव्य. रामायण और महाभारत इंडिया के 2 महाकाव्य हैं. सो दे वर रिटन एंड एनी क्रिएटिव एप्रिसिएशन बेस्ड ऑन वेदास कंपोज इन द पोएटिक फॉर्म. मतलब किसी भी काव्य के प्रकार में इनको क्रिटिसाइज किया गया था, वो ब्राह्मणिकल लिटरेचर था. वैदिक लिटरेचर एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग बिहेवियर हैव बीन एक्सप्लेन्ड ब्रॉडली. अब बात करते हैं अरण्यकास. आर्यंस, उनकी पिछली जिंदगी मतलब लास्ट ईयर्स ऑफ देयर लाइव्स दे वर स्पेंडिंग इन अरण्य. अरण्य मतलब वन, वनवास. वो वन में चले जाते थे और वहाँ अपने आश्रम्स बनाते थे फॉरेस्ट में. अरण्य मतलब फॉरेस्ट और वन, और वहाँ अपना लिटरेचर और फिलोसॉफी बेस्ड लिटरेचर बनाते थे. और ये हम उनके अरण्यकास में से पढ़ सकते हैं. वेदांग्स, वेदांग ये वो लिटरेचर हैं जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स, ग्रामर, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी के बारे में हमें बताते हैं. अब बात करते हैं भारत के 2 महान एपिक मतलब महाकाव्य, रामायण और महाभारत की. ये भारत के 2 महान महाकाव्य हैं और ये एपिक्स आपको 2nd सेंचुरी तक की बात बताते हैं. और रामायण में रामचंद्र की, जो अयोध्या के राजा थे, जो मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जानते थे, उनके बारे में है. रामायण इज द स्मॉलर एपिक देन द महाभारत. It narrates many attractive stories of adventure. महाभारत is world's largest epic. दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है. Has उसमें 1 lakh verses है. How many verses? There are 1 lakh verses. This describes the war between Kauravas and Pandavas. आपको तो पता ही होगा 5 पांडव और 100 कौरव के बीच जो वॉर हुआ था और कृष्ण भगवान ने जो भगवत गीता सुनाई थी. Besides, it also consists numbered stories. महाभारत एक वटवृक्ष जैसा है. मतलब एक में से दूसरी, दूसरे में से तीसरी, तीसरे में से चौथी, इसलिए स्टोरी निकलती ही जाती है. भगवत गीता जो महाभारत का ही एक हिस्सा है, वो हमें डीप फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स समझाती है. इट ऑल्सो कन्वेज द मैसेज ऑफ मोक्षा थ्रू ज्ञान, कर्म एंड भक्ति. मतलब हम मोक्ष कैसे पा सकते हैं, हम निर्वाण कैसे पा सकते हैं, वो क्या ज्ञान, कर्म, भक्ति से हम पा सकते हैं, वो दिखाया गया है. दोनों ही रामायण और महाभारत भारत के लोगों को बरसों से इन्फ्लुएंस करते आ रहे हैं. दे हैव इम्प्लांटेड मोटिवेशनल सीड्स, और इन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दिया है इंडिया के लोगों को. धर्म और अधर्म के बारे में सिखाया है. ड्यूरिंग दिस पीरियड संस्कृत लिटरेचर वॉज प्रोड्यूस्ड. इस समय संस्कृत लिटरेचर पहली बार बना था और उसमें कॉम्बिनेशन था
एक तो रिलीजियस लाइफ और वर्ल्डली एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। पुराणों में क्या था? दे एक्सप्लेन द इनिशियल वैदिक रिलीजन ऑफ अर्लियर टाइम। ड्यूरिंग दिस पीरियड मैनी स्क्रिप्चर्स एंड स्मृति ग्रंथास वर कंपोज्ड एंड दे वर डेल्ट, वो साइंस और फिलोसॉफी के बारे में थे। जैसे कौटिल्य की अर्थशास्त्र की बुक, ये सबको पढ़नी चाहिए। इट इज़ अ बुक ऑफ मैनेजमेंट, अर्थव्यवस्था के बारे में ये बुक लिखी गई है, जो बहुत ही जबरदस्त बुक है। द स्मृति ग्रंथ एक्सप्लेन्स द रिलीजियस टीचिंग्स, लॉज एंड कस्टम्स। अब आपको पता है अर्लियर बुद्धिस्ट लिटरेचर वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था? इट वॉज रिटन इन पाली लैंग्वेज। पाली लैंग्वेज आपको देखोगे तो कुछ चाइनीज जैसी नजर आएगी। सो वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर, एंड इट इज नोन एज त्रिपिटिका। व्हाट इट इज नोन एज? त्रिपिटिका। सो विच 3 पिटिकास आर देयर? फर्स्ट one is Sukta Pitika, then Vinay Pitika and Abhidham Pitika. Besides, many other works were also composed in Buddhist literature. Gupta period was known as the golden period for the growth and development Sanskrit poems and dramas. तो गुप्ता पीरियड हर चीज़ के लिए अच्छा था और लिटरेचर के लिए भी। कौन कौन से पोइट्स हुए थे उस समय संस्कृत में? चलो देखते हैं उनके नाम। कालिदास, भवभूति, भारवी, भर्तृहरि, बाणभट्ट, मांगा एंड मैनी अदर बिलोंग टू दैट पीरियड। अब कालिदास पूरी दुनिया में फेमस है, एंड यू नो दैट ही हैड रिटन मैनी इंपॉर्टेंट बुक्स लाइक कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम एंड ऋतु संहार। These are his best books. He is known for his poetic and dramatic style. Bana had written Kadambari and Harsha Charit. It is the biography of King Harsh. Now, भवभूति has written उत्तर रामचरित, मतलब रामायण के बाद की कहानी, लव कुश की कहानी वो लिखी थी भवभूति ने। बारवीज किरातार्जुनियम, विशाखा दत्तास मुद्रा राक्षस, सुद्रक्स वृक्षकटिकम एंड दांडीज दश कुमार चरित्र। दीज आर द डिफरेंट संस्कृत बुक्स रिटन एट दिस टाइम। सो अब ये सब बुक्स और उनके ऑथर्स के नाम आते जाएंगे, आपको उनको लिख के याद रख सकते हो, लिख के याद रखो। अगर ऐसे पढ़ के याद रख सकते हो तो और भी अच्छी बात है। अब इस समय बाद में गुजराती में भी कुछ स्टोरीज, ड्रामास, भजन वगैरह लिखे गए थे, एंड इट वॉज डेवलप एंड मैनी लिटरेरी वर्क्स वर कंपोज इन दैट। द हेरिटेज ऑफ गुजराती लिटरेचर, तो विच पोएट्स एंड ऑथर्स ऑफ गुजराती लैंग्वेज आर फेमस? सो यू कैन राइट दिस नेम। नरसिंह मेहता जिन्हें बहुत सारे भजन लिखे हैं, मीराबाई के भजन आपने सुने होंगे, दयाराम, अखो, अखो नाच अखा के छप्पा, प्रेमचंद, प्रीतम, ये फेमस राइटर्स थे उस समय के। और दे हैव रिटन मैनी थिंग्स लाइक दे हैव रिटन वर्सेस, सॉन्ग्स, गरबा, narrative poems and chappas. And after the scholars like Narmad, Naval Ram, Kishore Lal Masruwala, Panna Lal Patel, Uma Shankar Joshi, Mahipat Ram, Roop Ram, Nilkant, Govardhan Ram Tripathi, ऐसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट राइटर्स थे। गोवर्धन राम त्रिपाठी, उन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी थी, और वो बुक जैसे हम सीरियल देखते हैं वैसे ही लोगों में उसमें बहुत इंटरेस्ट आया था। वो न्यूज़पेपर में हर हफ्ते एक एपिसोड आता था। उस बुक का नाम है, उस पर इससे एक सीरियल भी बनी है। उस बुक का नाम है सरस्वती चंद्र, जो गोवर्धन राम त्रिपाठी ने लिखी थी। अब साउथ की जो 4 मेन लैंग्वेजेस थी वो थी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम, राइट? These were 4 Dravidian languages, and Tamil was the oldest of these languages, right? From these 4, Tamil, Telugu, Kannada, and Malayalam, Tamil is the oldest language. So, it is said that 3 literary gatherings, मतलब 3 साहित्य के संगम हुए थे, और यहाँ बहुत सारी बुक्स लिखी गई थी। और उसके ये बुक्स में जो सब्जेक्ट थे वो क्या था? पॉलिटिक्स, वॉर एंड लव। और you know, there was one book called Ettu Tokoi, that means composition of 8 poems. Then Tolakkapiyam, that is grammar. Then Pattu Pattu, that is 10 songs. And Tiruvalluvar ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है कुरल, जो लाइफ और रिलीजन के बारे में है। द शिल्पा कडिकरम एंड द मनी मेकलाई, ये उस समय की तमिल लिटरेचर की बहुत फेमस बुक है, याद रखना, शिल्प कडिकरम एंड मनी मेकलाई। अब हम बात करते हैं मेडिवियल लिटरेचर, जो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा फ्लोरिश हुआ था। सो द ग्रेट वर्क्स वर कंपोज ड्यूरिंग दिस पीरियड वर इन संस्कृत। इन दिस एज 2 great works studied in कश्मीर। कौन सी बुक लिखी गई थी?
तो वो दो बुक थी, पहली थी सोमदेव की कथा सरिता सागर एंड द सेकंड वाज कलहंस राज तरंगिनी. सो दीज आर, ये दोनों इंडिया की फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक्स है. रिमेंबर दिस फॉर 1 मार्कर. अनदर फेमस वर्क ऑफ दिस टाइम इज गीत गोविंद. जयदेव ने लिखा था गीत गोविंद, जो संस्कृत की फाइनेस्ट पोएम में से एक है. एज वी हैव सेड बिफोर, दिस वाज द पीरियड व्हेन द अपभ्रंश मीन्स ब्रोकन लैंग्वेज हैड स्टार्टेड डेवलपिंग इन मॉडर्न इंडिया. वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स इन अर्ली फॉर्म ऑफ हिंदी. अब हिंदी के भी कई प्रकार है. हिंदी में बुक लिखी थी पृथ्वीराज रासो बाय चांद बरदाई. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बुक. यू शुड रीड इट व्हेनेवर यू गेट टाइम. पृथ्वीराज रासो. नाउ the work that marks the beginning of the Hindi literature deals with heroic deeds पृथ्वीराज चौहान. ये बुक पृथ्वीराज चौहान के बारे में, पूरी लाइफ के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हमें कई चीज़ें बताती हैं. In this time, Sanskrit literature made great stride in South India. For some time, Jainism influenced Kannada literature. और Pampa, the poet Pampa had written Adi Puran and Vikramarjun Vijayant. Panna had written Shanti Puran describing the life of 16th Jain Tirthankar. Poet Rana composed two books, namely Ajitnath Puram and Gadayuddh. The poets, namely Pampa, Ponna and Rana. Remember, PPR, Pampa, Ponna, Rana, they are known as the trio of the early Kannada literature. Poet Kamban composed Ramayana in Tamil language, and famous literary works were written in Tamil language also. Now, we will talk about the languages surrounding Delhi Sultanate. दिल्ली में कौन कौन सी लैंग्वेजें थी. सो दिल्ली की जो लैंग्वेज थी उसकी दो प्रकार थे. एक तो खड़ी बोली थी एंड सेकंड वाज ब्रिज भाषा, राइट. तो इसमें बहुत सारे इस दोनों लैंग्वेजेस में बहुत सारी बुक्स लिखी गई थी, बहुत सारी कविताएं लिखी गई थी. मैनी हीरोइक पोएम्स एंड स्टोरीज वर कंपोज इन राजस्थानी लैंग्वेज ऑल्सो. सो कौन सी फेमस है उसमें, और वो जो राजस्थानी मैंने आपको बताया हिंदी और गुजराती के जैसे ही है. तो आल्हा उदल की कहानी, विसल देव रासो की कहानी, ये उस समय पॉपुलर थी. और मुल्ला दाऊद ने एक बहुत अच्छी बुक लिखी थी जिसका नाम था चंद्रयान. इट इज़ द ओल्डेस्ट बुक इन अवधी लैंग्वेज. अवध की लैंग्वेज जो अवधी लैंग्वेज उसमें लिखी थी. हाउएवर द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द एंशिएंट बुक्स वाज स्टिल रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज. लेकिन इनका क्रिटिकल एप्रिसिएशन तो संस्कृत में ही लिखा जाता था. नाउ उस समय कोर्ट मतलब दरबार की भाषा हुआ करती थी पर्शियन, दिल्ली सल्तनत की. तो उसमें बहुत सारे पर्शियन वर्ड्स है. भाई गुजराती में भी हमारे कई पर्शियन वर्ड हमें पता ही नहीं है. मैनी हिस्टोरियंस इमर्ज्ड आउट ड्यूरिंग दिस पीरियड. वी गेट प्रॉपर डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन हिस्ट्री थ्रू टर्किश राइटर इन पर्शियन लैंग्वेज. जियाउद्दीन बरानी रोड तारीख ए फिरोज शाही, विच गिव्स अ डिटेल अकाउंट ऑफ खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी एंड तुगलक किंग्स. तुगलक किंग्स आपको पता होगा, मोहम्मद तुगलक. They were considered to be very crazy. He also wrote a book on political theory called Fatwa e Jahangiri. Fatwa मतलब some order given by the ruler. The most outstanding literary figure of this time was Amir Khusro. क्यों इतना important ये पर्सन था? क्योंकि वो एक पोइट भी था, हिस्टोरियन भी था, मिस्टिक सेंट मतलब सूफी संत था और म्यूजिक कंपोजर भी था. और वो निज़ामुद्दीन औलिया का डिसाइपल मतलब उसका चेला था. He was the disciple of Nizamuddin Aulia. He wrote the book Ashika, the Nah Sifire, Kiratal Sadayan, the Khazain ul Futu, and several other works. He took great pride of his being an Indian. उसको इंडियन कहलाने में और मानने में बहुत मजा आता था और इंडिया की बहुत तारीफ करता था. इंडिया को वो पृथ्वी पर का स्वर्ग कहता था, अर्थली पैराडाइज. He praised India's flora and fauna, its beauty, its buildings, its knowledge and learning. He appreciated everything in India. He strongly believed that in many respects Hinduism is similar like Islam. Hinduism Islam जैसा ही है कई बाबतों. He considered, उसने एक लैंग्वेज बनाई थी हिंदौली. He considered Hindoli, the Hindi spoken around the region Delhi. वो उसकी मदर टंग समझता था and he composed many verse in it. So जो हिंदी दिल्ली के आसपास के बोली जाती थी उसको बोलते थे हिंदौली. He composed verses in many languages. He wrote a number of bilingual contrasts. मतलब दोनों ही भाषा में उसने बुक लिखी और वो थी एक हिंदी और एक पर्शियन. The healthy tradition started by him. उसने कई हिंदी बुक्स या संस्कृत बुक्स को ट्रांसलेट किया था पर्शियंस में because they were very good book. The regional kings also gave
a great impetus means support to read the language and literature. Bhakti saints preach in the language of people. पहले म्यूज़िक या तो गाने बजाने को अच्छी तरह से नहीं देखा जाता था, लेकिन जब म्यूज़िक कंपोज होने लगा, भजन वगैरह गीत वगैरह म्यूज़िक में गाए जाने लगे, तब म्यूज़िक को लोगों ने एक्सेप्ट किया. तो कबीर के दोहे तो आपको पता ही होगा कितने फेमस हैं. कबीर, तुलसी के दोहे कितने फेमस हैं. भोजपुरी या अवधी, दे आर द मेजर डायलेक्ट्स. डायलेक्ट मतलब बोली उस समय की थी. और कबीर ज़्यादातर अपनी बातें, अपने दोहे वो साधु कड़ी में लिखते थे. कबीर दोहा है बिकम अ पार्ट ऑफ फोकलोर, मतलब ये लोगों के दिल में बहुत आ गए हैं. लोगों के दिल को बहुत भाते हैं कबीर के दोहा. बहुत सारे हैं, जैसे एक मैं सुनाता हूँ तुलसी का. आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी वहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे में. मतलब ये 4 लाइन वो लिखते थे, उसको दोहा बोलते थे. ऐसे कबीर ने बहुत सारे लिखे हैं, तुलसी ने भी लिखे हैं. मलिक मोहम्मद जैसी रोट पद्मावत in Awadhi. You must be knowing about Padmavat. It was written in Awadhi. So there were many poets in Awadhi at this time. Moreover, the well-known Ramcharitmanas, इसको किसने लिखा था? तुलसीदास जी ने लिखा था अवधी लैंग्वेज में. और अवधी लैंग्वेज में भी बहुत सारे राइटर्स थे. Besides Hindi language, literature in other languages also developed. In Bengali, बंगाली में रामायण को ट्रांसलेट किसने किया था? कृति वसा ने किया था. And the 100 lyrics by the famous poet Chandidas were written under the patronage of the rulers. और चंडीदास ने भी बहुत सारी बुक्स लिखी थी. अब Saint Chaitanya has the tradition of writing devotional songs. चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य ने बहुत सारे भगवान के मतलब डिवोशनल सॉन्ग्स लिखे थे. नरसिंह मेहता ने डिवोशनल सॉन्ग्स लिखे थे गुजराती में. मीरा ने लिखे थे. नामदेव ने लिखे थे. संत एकनाथ ने मराठी में लिखे थे. There were important developments in Kashmir under Zia Zainul Abidin, under whose patronage many Sanskrit works like Mahabharat and Raj Tarangini उसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया था because they like it. विजयनगर, ये किंगडम आप कैसे भूल सकते हो? तेनाली रामा का किंगडम था ये. There also Sanskrit literature continued to develop. However, this was an important period for the growth of Telugu literature. राजा कृष्ण देव राय, जो विजयनगर के महान राजा थे, he was also a Telugu and Sanskrit writer. He had written a book called Amukta Malayad. As art and architecture in the Mughal period also saw great development in the literature. You know, Mughal rulers were very brave, but they were very soft at heart also because they had written many books. Babur, the first Mughal ruler, was one of the pioneers of Turkish poetry, and also Babur, he was the first one who started writing in Turkish poetry and very valuable autobiography. He has written autobiography Tuzuk-e-Babur in Turkish. उसकी खुद की बुक उसने Tuzuk-e-Babur लिखी थी टर्किश में, which was later translated into Persian and titled as बाबरनामा, आत्मकथा. गुलबदन बेगम, जो एम्परर हुमायूं की बहन थी, उन्होंने हुमायूं नामा लिखा था हुमायूं के बारे में. जहांगीर ने अपनी खुद की आत्मकथा लिखी थी, हिज ऑटोबायोग्राफी. इट वॉज नोन एज तुजुक जहांगीरी, मतलब तुजुक मतलब आत्मकथा, मेरी आत्मकथा. औरंगजेब ऑल्सो वॉज अ प्रोलिफिक राइटर, दो ही इज रिमेंबर्ड एज वेरी क्रूअल रूलर, बट ही वॉज अ प्रोलिफिक राइटर. एंड द लास्ट मुगल एम्पर बहादुर शाह जफर, ही वॉज अ नोटेबल उर्दू पोएट. बहुत अच्छी कविताएं उर्दू में लिखते थे बहादुर शाह जफर, जो लास्ट मुगल एम्पर थे. हिंदी लिटरेचर मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस ड्यूरिंग अकबर्स रेन. Tulsidas or Surdas, they wrote in this period. The great poet Kesavdas wrote on love and separation. रहीम के दोहा, मैंने बोला 3 लोगों के दोहा बहुत फेमस थे. एक था तुलसी, कबीर और रहीम. Many noteworthy books were written in during this period. Abul Fazl had written Aine Akbari and second book was Akbarnama. These 2 books were written by him. अब आईने अकबरी हमें क्या बताता है? आईने अकबरी gives us detail of Indian custom, manners, religion, philosophy, economic condition and almost every other. मतलब इंडिया के बारे में सब कुछ बताती है बुक. As a history work, it is perhaps unparalleled. अबुल फजर का जो भाई था फैजी, he was also a great Persian poet. He translated many Sanskrit works in Persian. अकबर ने एक डिपार्टमेंट बनाया था सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन के लिए संस्कृत में से. And he had translated Mahabharata and Ramayana and the Atharva Veda, Bhagavad Gita and Panchatantra.
So he liked this all books and he had got it translated. One of the most significant development during the medieval period was the birth of Urdu language. इस समय उर्दू लैंग्वेज का दुनिया की सबसे अच्छी लैंग्वेज का जन्म हुआ था. ये बहुत मीठी जबान होती है. This new language soon developed into one of the richest modern Indian languages. It produced great poets like Wali, Mir Dard, Mir Taqi Mir, Nazir Akbar Abadi, Abdullah Khan Ghalib, Iqbal and others. सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ऐसी सब इन्होंने कविता दी थी. Urdu prose also developed in the early 18th century when the translation of most of the historical works from Sanskrit into Urdu began. At the same time, original prose work in Urdu was written. Muhammad Hussain Azad's Darbar-e-Akbari is one of the best works in Urdu language. So this I told you about the authors and their works of ancient time and medieval time. Now in the second part we'll talk about 3 universities. Bye for now. We'll meet in the second part of the 4th chapter, Literary Heritage of India. Bye for now.